साई प्रसाद जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग। जितने भाई साहब हैं सबको गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Very good morning. No, actually, Dipti. Mr. Sai Prasad Rao is reading today, so you'll Yeah, see yeah. him as a Morning, spotlight and everyone. highlight. Beautiful voice. He has a Good very good morning. way of reading. Yeah. सर आपकी Okay, so आवाज नहीं आ रही है. गुड मॉर्निंग बेटा। अभी वो म्यूट पे होंगे ना, अभी आएंगे नहीं, उन्हीं की आवाज unmuted सुनाई है. पड़ेगी। अनम्यूटेड है. Unmuted है. Hmm. Okay then. Oh, then we'll have to figure out because he's the one reading. Yes. कहेगा. With Now Tamilian you're on accent. mute, sir. Tamilian accent. That is a. Yeah. So, Mr. Rao, you'll have to just speak something so that we can just have a quick voice check. Because in case अगर आवाज नहीं आ रही है तो you'll have to log out and log in again. नहीं, अभी तो उनका म्यूट हो गया एक्चुअली. अच्छा. साई प्रसाद भाई साहब आपका अभी म्यूट है. Okay. In the meanwhile, we can just see what. अभी हो गया unmute. Yes. Yeah, yes. yeah. Now good. it's okay. Now Yeah. you can hear me? Yeah, yeah, absolutely loud and clear. Perfect. So, Thank you. yeah. So this is our last assignment. I mean, assignments actually practically we finished yesterday. And today is the last day, which tells us that yesterday का दिन बहुत जरूरी है, उसको चेरिश करो और उसमें से nuggets of gold निकाल के आज वाले अपने दिन में डालो. That's what it's all about. And this we should be doing every day. You know, मतलब हम लोग बहुत खाली दिमाग होता है ना, तो इधर उधर चला जाता है, इधर उधर कुछ ना कुछ, you know, like नेगेटिव चीजें आती रहती है, कभी पास में चला जाता है, कभी इधर ट्रैवल करता है, टाइम ट्रैवल ही करता रहता है हमारा दिमाग. So it's always better that the moment the mind is empty, we go back to kind of just recognizing and picking up the beautiful things from yesterday. Remember the magic chapter का नाम है. That means yesterday, जो दिन गया, उसमें से क्या nuggets of gold आप निकालते हो सुबह से, कि हम सब ने बहुत अच्छा सेशन अटेंड किया, बहुत मजा आया, the experiences were beautiful, we got to learn something from telepsychics, फिर mirror work का हमको practice का पता लगा, self love discover किया, फिर और क्या हुआ, so we all went for maybe a walk or a good drive to work या जो भी था, तो it was so comfortable, so easy, so effortless, बहुत मजा आया. Yesterday the weather was like really stunning. फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इस तरह सोच सोच के कल की सारी चीजें आज लिखना. And this we can write not in the morning because ये count my blessings नहीं है. Count my blessings तो सुबह सुबह करनी होती है, the moment we wake up. This is to be written at any point of time during the day. और ये जरूरी नहीं है कि 10 लिखो और you write 5 or you write like 25 or you write like 28. इसका कोई set number नहीं है. कभी कभी बहुत easy day होता है when you are just at home, बड़ा easy breezy दिन होता है जहाँ पे कोई खास नहीं किया, अच्छे से खाना खाया सबके साथ मिलके, फैमिली के साथ मिलके, अच्छा अच्छी नींद आई, कुछ आया, you know, like इस तरह से जब बहुत ही easy day. So maybe there are just 4 things that you can pick from yesterday and write today. So it just could be that. So इस तरह से हर दिन अलग होता है और उसमें से nuggets of gold निकालना कि कल का दिन इतना अच्छा था. और ये वाली practice जब करते हैं, so we know that whatever we put our attention to amplifies in our life. है ना. सो हम अपनी पूरी एनर्जी फोकस डाल रहे हैं कि अच्छा कल ये हुआ था, ओ दैट पर्सन आई मेट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट वाज सो नाइस टू सी दैट पर्सन, मैं उसके बारे में सोच रही थी. देन व्हाटएवर इट इज, लाइक यू नो, जैसे दिल्ली में कल बहुत सुंदर धूप निकली हुई थी, लाइक ब्राइट सनी येलो कलर्ड डे. इट वाज दो वेरी ब्रीजी, वेरी विंडी रादर, यू नो, बट देन हम लोगों को बहुत टाइम से यहाँ पे धूप देखने को नहीं मिली. आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे. सो उसके बाद having that kind of a bright sunny day, so it was so beautiful, you know, like pottish yellow color की जो धूप होती है, while it was very very cold, the temperature was 8 degrees or 8 or 9 degrees what was showing in the phone. So but then yeah, I mean like it was so beautiful. फिर उसके इस तरह से पूरे दिन भर कल जो हुआ था, you know, that nuggets of gold निकालने कल के दिन से, that's what remember the magic is. And how does it work and वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. So we'll just go through the picture also here. So picture में एक रास्ता बना हुआ है, हमको उसी रास्ते पे चलना है because ये practically हमारा last chapter है. पता नहीं कितनी बार हम किताब पढ़ चुके हैं तो ये इस बार का last chapter है. So this is a beautiful pathway जो बना हुआ है, तो हमको कहा गया है कि इसी pathway पे आपको चलना है. इसके आसपास देखो बहुत सारा अंधेरा है, अंधेरा रहने दो, इट रियली डजंट मैटर. उस अंधेरे में से हमको रोशनी ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी वांट लाइफ टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वी वांट अमेजिंग अनफोल्डिंग्स
जो पैरेलल यूनिवर्स में है, जो हमारे डिजायर्स थे, हम चाहते हैं वो सब हमारी करंट रियलिटी बन जाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट। सो हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर चैप्टर है ये वाला। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग मिस्टर। Good morning, everyone. Morning. Day 28, remember the magic. Is my voice audible correctly? It is like you're speaking on the mountains where you speak and then another voice comes back to you like an echo. So are you logged in from 2 devices? You can switch off Is it one okay? device. Is it okay now? Yeah, Okay, because I had my phone also on, so I just yeah, switched yeah. on. It looked like you're logged in from 2 devices. Quote, that's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, born 1951, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for an answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend whom you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really wanted to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list
saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Quote, whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Second point, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Point 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. Point 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you, Mr. Rao, for reading so beautifully. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah, so this is about the practice that हम नॉर्मली आपने देखा होगा एज अ पैटर्न, हम कभी सुबह सो के भी उठते हैं और जब हम पूरी तरह से अवेक एंड कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमको कल की वो चीजें याद रहती है विच वर नॉट गुड, you know, because human mind हमेशा gravitate करता है towards things that are not good, things that the negative, because उसमें energy quotient हमारा बहुत ज्यादा जाता है. So ये वाली प्रैक्टिस है, इसमें वो एक लाइन लिखी थी ना, that remember the magic practice अगर हम रोज करेंगे, you will have opened your heart to seeing the good things in your life. Because अभी भी हमारा हार्ट उस लेवल तक आया नहीं है, because all of us know inherently that we think more about the things जो हमारी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही है. So if there are 10 things total that have happened, उसमें से 8 चीजें हमारी लाइफ में बहुत अमेजिंग हुई हैं सपोज कल, और 2 चीजें ऐसी हुई है जो ठीक आपको नहीं लगी, we will gravitate towards you know those 2 things only जो ठीक नहीं गई हैं, और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. So हम वो पूरी जो वायरिंग और वो जो सिस्टम है, now we are changing the whole set of things around that, and now we are picking up those 8 things और हम उसको amplify कर रहे हैं. ठीक है, तो that is what we want to concentrate on, जो हमने कल टेलीसाइकिक में पढ़ा था, that जिस चीज पे concentrate करोगे, जिस चीज पे फोकस करोगे, वो बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है. So हम लोग अभी तक बचपन से अभी तक नेगेटिव चीज की तरफ concentrate करते आ रहे हैं. ठीक है, तो हमारा वो जोन रहता है पूरे टाइम की, कोई भी नेगेटिव चीज बहुत आराम से पिक करते हैं, और हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, हमारा कंसंट्रेशन सारा उस तरफ जाता है कि दिस थिंग हैपेंड. सो इंस्टेड, एक तो पहले भी उसमें लिखा होता है, बी सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड बी ग्रेटिट्यूड ओरिएंटेड. पिक अप दोस थिंग्स जो आपको बहुत अच्छी लगी, उनके बारे में और सोचो, एंड देन यू विल सी दैट अपने आप उस तरह की वायरिंग, मतलब वो हार्डवायर हो जाता है फिर हमारे लाइफ में, that we are picking up all those beautiful things, you know, जो कल हुई और उनके बारे में. तो ये वाली प्रैक्टिस इसमें लिखा हुआ है कि आप you can write it and do it, you can speak out loud, you can do it in your mind. But सारी बुक्स में, टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि जब आप जोर से कुछ बोलते हो ना, जब मुंह से आवाज निकाल के बोलते हो तो उसकी पावर अलग होती है. ठीक है, and it goes into the universe in the form of a very positive energy.
सो अगर हम बोल के कर सकते हैं तो वैसे कर लेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए आप अगर लिखते नहीं हो सपोज और आप वॉक करते करते बोल के कर रहे हो, हम वो भी कर सकते हैं। इफ यू आर वॉकिंग अलोन, यू नो यू गॉन आउट फॉर योर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक और व्हाटएवर, तो आप बोल के भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और सोचना क्या है इसमें, Rhonda Byrne always makes it easy for us, and she's written it down that आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो that what are the good things that came out yesterday, what were the good things that happened, and think more, because anyhow universe loves questions. So आप questions पूछोगे, like ये भी पूछोगे how can I start receiving 25 lakhs every month, I mean like can you give me any idea, so that way और आपके पास अपने आप वो चीज होने लग जाती है, you will see that prayer get answered. Universe always loves questions, so ask a lot of questions. अच्छी चीजें भी जो निकालनी है हम एक्चुअली भूल जाते हैं in the rut of the life, but then if you ask questions that what were the amazing things that happened yesterday, did you receive a, जैसे इसमें पूरा वो questions भी दिए हुए हैं Rhonda Byrne ने समझाने के लिए, did you receive a good phone call, did you get to help someone, किसी ने आपकी मदद करी, किसी ने आपको स्माइल दिया, कुछ ऐसा काम आपने किया जो बहुत अच्छा था, क्या अच्छा कुछ खाया, क्या कोई अच्छी फोन कॉल हुई, क्या कोई आपको डील मिली, कोई क्लाइंट आया आपके पास, क्या आपको पैसे मिले, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली किसी को पैसे देने के लिए, इस तरह से। सो ये चीज जब हम लगातार सोचते रहेंगे कि और क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हुआ, तो हमारी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी टुवर्ड्स फाइंडिंग ग्रेटिट्यूड, एंड देन द लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। अगेन दिस लुक्स लाइक अ स्मॉल प्रैक्टिस, बट ये होता नहीं है। तो हम धीरे धीरे जोन में जाते जा रहे हैं, इसीलिए मैजिक बुक मतलब हमारी फाउंडेशन है लाइफ की, तो इसको हम बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये 28 चैप्टर्स हो गए और दोबारा से शुरू करेंगे, तो इट ऑल्सो बिकम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू मेनी ऑफ यू हु आर नॉट डूइंग द असाइनमेंट्स। देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु आर नॉट डूइंग द असाइनमेंट्स। आपको लगता है कि टाइम नहीं है, या लगता है कि ये असाइनमेंट करने से क्या होगा, बट हमारी जिंदगी तो असाइनमेंट करने से ही बदली है। और शुरू के 6-7 महीने तो मतलब इस तरह से किया है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अभी भी जस्ट दैट तब हम एक असाइनमेंट ही करते थे जो दिन का होता था। अब ये है कि 9-10 असाइनमेंट रोज बहुत आराम से हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ही हार्डवायर हो गए लाइफ में, लाइक मैजिक फुट स्टेप्स रोज होते हैं, मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ रोज होते हैं, मैजिक डस्ट एवरीवन रोज होता है ना, मैजिक इंग्रेडिएंट रोज होता है, मनी मैग्नेट रोज होता है, जब भी पैसे देते हैं तो थैंक यू पेड अपने आप से निकलता है अंदर से, और बहुत ग्रेटफुल फील होता है। पैसे आते हैं तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, इवन इफ इट इज जस्ट 50 रुपीज लाइक दैट यू मेड, सो इवन दैट फील सो गुड। सो कुछ प्रैक्टिसेस रोज होती हैं। मैजिक वॉन्ड, जैसे हमको पता लगता है कि समवन's नॉट ओके एंड समवन नीड्स आवर ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स, वैसे मैजिक वॉन्ड हो जाता है। सो इस तरह से बहुत जरूरी है हमको, और कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसमें से 10 पॉइंट निकालना, जो कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड होता है, ये भी जरूर। जैसे ही कुछ ऐसे हुआ, वेदर हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पैसे में, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज हुई जो आपको लगता है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग एंड यू डिड नॉट लाइक इट, यू डिडंट वांट दैट, इमीडिएटली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करो। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड होता है 10 ब्लेसिंग्स लिखना उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसमें अभी तक नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज जब तक नेगेटिव एनर्जी है उसमें, तब तक वो और ज्यादा एक्सपैंड करेगी, और वो काम आपका जो 2 दिन में होने वाला होगा उसको 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, क्योंकि एनर्जी खराब है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। अगर कोई चीज आपकी ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी नेगेटिव है, तो उस एनर्जी को चेंज करना जरूरी है, इसीलिए तो हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डालते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। और ये रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस करते हुए कि कल तो बहुत रीसेंट होता है ना, तो कल में से अच्छी चीजें, एंड देन यू सी दैट उस चीज पे जब हम एम्पलीफाई करते हैं ग्रैटिट्यूड पे कल का, तो हमारी लाइफ मतलब टुमारो विल बी वेरी ब्यूटीफुल। It is as simple as that. This is how science works. It is not spirituality. Spirituality means being connected to the, वो टेलीसाइकिक बुक हमको spirituality सिखा रही है कि अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आप से पूछो, अपनी पावर को यूज करो। आपके अंदर एक ओशन भरा हुआ है, लेकिन आप उसमें से एक बाल्टी भी पानी नहीं निकाल पाते हो, है ना। तो टेलीसाइकिक बुक हमको उसमें हेल्प करेगी कि पूरे की पूरे ओशन आपके पास है, आप खुद ही वो ओशन हो, आप उसको अच्छे से यूज करो ना, पूरी अपने आप को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, और पूरी दुनिया बदलने के लिए। मतलब हमारे पास इतना पानी है कि हम पूरी दुनिया को पिला सकते हैं, ओशन में इतना पानी होता है, इजंट इट, लेकिन हम उसमें से एक चम्मच लेके खड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब गॉड से ठीक है, जितना बड़ा आपका वेसल है उतना बड़ा हम आपको दे देंगे, तो हम एक स्पून लेके खड़े हैं तो हमको एक स्पून मिल जाता है उस ओशन में से, है ना। जब हम खुद ही ओशन है, जब हमारे पास सारी वो पावर है, तो टेलीसाइकिक बुक हमको वो करवाएगी, हमको उस ये याद दिलाएगी और वो अप्लाई कराएगी जिंदगी में, that you are the ocean in yourself and there's enough water for you to have and to give to the world.
okay, because ocean never ends, it's infinite. पूरा सर्कल अर्थ का जो है उस पे वो ओशन के नाम बदलते रहेंगे, जो सी आती है उनके नाम बदलते रहेंगे, बट पानी का कोई ब्रेक थोड़ी आता है, कोई बीच में बैरिकेड थोड़ी लगा हुआ है एक समुद्र से दूसरे समुद्र के बीच में। वही पानी है, कलर चेंज होते रहते हैं, उनमें सॉल्ट कंटेंट चेंज होता है, उनके इंग्रेडिएंट कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं, फिर एक बार डेड सी ब्लैक सी भी आती है, बट वही ओशन कंटिन्यू हो जाता है, साफ सुथरा होके आगे चला जाता है और पूरी दुनिया सर्कल करके अलग अलग नामों से, बट देन इट्स देयर। सो आवर लाइफ इज एज इन्फिनिट एज द ओशन। तो हमने ये रियलाइज किया नहीं था, इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों में परेशान रहते थे। लेकिन वो ओशन बनने के लिए हमको दो तरह की ही एनर्जी चाहिए, ग्रैटिट्यूड एंड लव, to become that ocean ourselves. We already are. It's just that हम उसमें से withdraw नहीं कर पा रहे। वो जो हमारा conduit pipe है ना, उसमें से थोड़ा सा ही आ रहा है क्योंकि हमने अपना वॉल भी बंद किया हुआ है उसको। तो वॉल को भी खोला हुआ है तो वो टप 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 करके हमारी जिंदगी में आ रहा है। अब हम पूरा खोलेंगे, फ्री फ्लो, भरपूर अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे और लोगों के साथ, लोगों की भी जिंदगी है ना। अगर आप सक्सेसफुल कल को होते हो बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली आप सोचो कितने लोगों को लाइवलीहुड्स देते हैं ना हम लोग। मतलब अपनी सक्सेस कोई अपने तक लिमिटेड तो है नहीं ना। अगर इफ आई एम डूइंग वेरी वेल, ठीक है, and I'm making crores and crores of money as my business turnover or whatever it is, I'm able to give to the other person also, no? Because उस मेरे ऑफिस में जो भी मेरा काम होगा, मैं कहीं जाऊंगी तो मैं जिस रेस्टोरेंट जिस होटल में ठहरूंगी तो उस होटल की भी तो इकोनॉमी राइज हो रही है, isn't it? I'm contributing to them, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए। सपोज मैं 10 दिन किसी 7 स्टार में रह रही हूँ तो उस होटल वालों की भी तो प्रोस्पेरिटी रेज हो रही है ना, यूनिवर्स में जा रहा है ना वो पैसा। सिमिलरली अगर मेरा कोई काम है और उसमें कम से कम 50 लोग या 100 लोग एम्प्लॉयड हैं ऑफिस में, उन 100 लोगों की लाइवलीहुड चल रही है ना, जो हम पैसा दे रहे हैं उससे 100 लोगों की लाइवलीहुड चल रही है। मतलब उनका घर, उनका परिवार, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, दे आर ऑल टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, राइट? सो हम लोग वैसे भी इंटरलिंक्ड है। हमारी अमीरी, हमारी अच्छी हेल्थ, हम अपनी अच्छी हेल्थ को बहुत यूज करते हैं लोगों को खुशियां देने में, लोगों को एक्सपीरियंसेस देने में, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। बिकॉज हेल्थ अच्छी होती है, देन यू कैन जस्ट बी ऑल ओवर द प्लेस एंड यू कैन जस्ट डू योर बेस्ट। Similarly, career and money likewise. So this is what basically it means, and the happiness that we receive, isn't it? When you make a nice travel, it gives you a lot of happiness. After every travel, अगर जो आपका अच्छा travel होता है उसके बाद देखना कोई बहुत बड़ी manifestations होती है, ठीक है? वो इसीलिए होती है बिकॉज आप कुछ दिन बहुत अच्छे जोन में रहे हो, ठीक है, और उस जोन की वजह से, ग्रैटिट्यूड और लव के जोन, खुशियों के जोन की वजह से कोई बहुत बड़ा अनफोल्डिंग होती है जिंदगी में। ऑलवेज नोटिस, या इवन इफ इट इज जस्ट गोइंग आउट फॉर अ नाइस जॉयफुल डिनर, अगर आप किसी के साथ फैमिलीज मिलके, दोस्त मिलके कहीं जाते हो किसी अच्छे डिनर पे जहां पे खूब फन एंड लाफ्टर होता है, आप देखना उसके बाद भी मैनिफेस्टेशन होती है, कुछ ऐसी चीज अच्छी हो जाती है, which is like really beautiful. And this is how life is. So try to keep yourself in that zone. उसके लिए remember the magic practice करनी बहुत जरूरी है, because so that हमारा दिमाग बार बार उस तरफ नहीं जाए unwanted चीजों के पास में। So बस practices अब ये continue रहेंगी। हमारी ये बुक तो खत्म होगी नहीं, अभी हम वापस day 0 पे जाएंगे और उन सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी who have not done the practices properly to give some time to it. ओके, टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे और डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड तो सीख ही रहे हैं, ग्रैटिट्यूड गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज इन किताब अगर पढ़ रहे हैं हम तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम ग्रैटिट्यूड जोन में ना रहें। वो तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा हार्डवायर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैं जितने भी मेंटर्स हैं मेरे, उन सब ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा बोला। उन्होंने कहा ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर लाइफ, at least 6 days a week you can bring discipline to your life. Discipline means in terms of living, eating, okay, puri lifestyle. Life is about balance. It is not drifting towards left side and right side. आप drink कर रहे हो, आप smoke कर रहे हो, आप खाना उल्टा पुल्टा खा रहे हो, processed food खा रहे हो, बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वॉक पे नहीं जाते हो, तो कहीं पे बैलेंस स्ट्राइक करो, ठीक है? वो भी साथ साथ चल रहा है हमारा। जितने भी हेल्थ वाले चैप्टर है उसमें रॉन्डा बर्न ने बताया है दैट इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन एंड योर लाइफस्टाइल। ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तो मैजिक कर रही हूँ तो मेरे साथ सब वो हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के तरीके भी होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन और लाइफ में लेंगे, थोड़ी सी सिंसियरिटी लाइफ में लेंगे। लाइफ इज अबाउट बैलेंस। अच्छा खाना भी खाएंगे साथ साथ, बिकॉज रोज नए सेल, नए जीन्स बन रहे हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। So while you can enjoy your 2 and 3 whiskeys every day or vodka or whatever you drink, okay, but वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए आप पी के गिर रहे हो। फिर स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, जितने भी लोग कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ, बिकॉज मैं तो हेल्थ केयर से हूँ ना, मुझे पता है कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स नॉट अब्यूज आवर बॉडीज, लेट्स रिवर आवर बॉडीज। फिर नींद, ओके, बिना बात के शाम को डिले करना मतलब 8 बजे के बाद, 8 PM के बाद आपको घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए, दैट आई नीड टू वाइंड अप माई वर्क, बिकॉज थोड़ी देर में सोना है, ठीक है। ये हमको करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत फर्क पड़ता है नींद से। मतलब हमारी 80% इम्यूनिटी कम हो जाती है अगर हम लेस देन 5 आवर्स सोते हैं। और क्योंकि सबको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट रात को आप टाइम से सो जाएं। और रात को आप टाइम से सो जाएंगे तो देखना आपकी लाइफ में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जानी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो वो सब भी ध्यान रखेंगे, जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसका ध्यान रखेंगे। वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड, so you need to be careful about what words you're speaking, because words have got a very powerful energy. Okay, so choose the words that you speak very very carefully. Try and speak the words that are really good. Okay, मजाक में भी हम ऐसे words ना यूज करें जो हमको रियलिटी में नहीं देखने हैं। तो ये भी साथ साथ ये प्रैक्टिसेस चल रही है। इट्स नॉट जस्ट ग्रैटिट्यूड, इट इज ऑल्सो दीज प्रैक्टिसेस जिनकी वजह से आपकी अनफोल्डिंग्स बहुत जल्दी हो जाएंगी। मतलब आपकी ड्रीम लिस्ट हो जाएगी, आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाएगी, इन सब चीजों के कारण भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सो सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स हमारा कंटिन्यू रहेगा, रात को मैजिक रॉक हमारा कंटिन्यू रहेगा। अदर देन दैट, जो हम बीच वाली जो प्रैक्टिस है, रिमेंबर द मैजिक इज समथिंग, आप बोल के भी कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, और इनका कोई नंबर नहीं है। आपको 2 लिखने हैं, आपको 10 लिखने हैं, जो भी है, कम से कम आप कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सो सो वी कल से हमारा कंक्लूसिव पार्ट शुरू होगा इसका। मेरा वही फेवरेट पार्ट होता है हमेशा। और टेलीसाइकिक बुक में अब हम पढ़ते हैं, और आज हम फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमको पावर पता लगी, कितने लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज उनको मिली है सिर्फ अपनी पावर को यूज करके, फनल अप करके, है ना, यूनिवर्स की पावर को फनल अप करके अपने अंदर, by thinking about giving energy and attention to the things that they want, and that way. So I hope आप सब लोगों ने कल वो बुक पढ़ी होगी जो मैंने भेजी थी, द पावर ऑफ साइलेंस और whatever, है ना, पढ़ी होगी ना। उसमें साइलेंस का मतलब मैंने लिख दिया था, साइलेंस ऑफ द माइंड। साइलेंस डजंट मीन कि मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हो। Silence means the silence of the mind, which we call as meditation or just deep breathing and silencing the mind and quietly sitting at one place. It's not a hustle and a tussle. Okay, it is just sitting at one place and giving yourself that break from overthinking, because mind बेचारा वो भी कहता है कि तुम सब तो सो जाते हो, और सब बॉडी जब सो जाती है तो माइंड कहता है तो मुझे तो और ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में से सारे हॉर्मोन्स और वो सब रात को ही निकलते हैं। ब्रेन अपने आप को क्लीन करता है, जैसे ही हम सोते हैं वो ब्रेन बेचारा अपने आप को 60% श्रिंक कर लेता है, ताकि बहुत अच्छे से बीच बीच में से घुस के ब्रेन की सफाइयां हो, सेल्स की। ये सब रात में चलता रहता है, ठीक है। तो ब्रेन बेचारा रात को भी बहुत प्रोसेसिंग करता है। तो फिर मेडिटेशन में यही होता है, द ब्रेन गेट्स अ ब्रेक एंड इट जस्ट गोज इन द आर्म चेयर एंड लाइज डाउन एंड सेज दैट, ओ गॉड, आई हैव बीन ओवरथिंकिंग सो मच 24/7, लेट मी टेक दैट 5 मिनट ऑफ ब्रेक एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट। इसके बदले में आपको बहुत कुछ दूंगा जिंदगी में। ब्रेन हमको बोलता है मुझे 15 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं इसके बदले आपको जिंदगी में बहुत बढ़िया हेल्थ, पैसा, इज्जत, शोहरत, ट्रैवल सब दूंगा, मुझे 10-15 मिनट का ब्रेक दे दिया करो। वो ब्रेक हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें जिंदगी में लाता है। और ब्रेन यही कहता है कि देखो 10 मिनट का ब्रेक दिया ना, अब देखना अगले 24 घंटे आपके कैसे बढ़िया स्पेंड होते हैं। सो वी नीड टू, वो ही था वो पावर ऑफ द साइलेंस, और वो छोटी सी किताब थी, तो 30 मिनट की ऐसे, और लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस आएगा। तो जैसे मैंने कल भी बताया था, बिश्नोई जी ने मुझे बहुत हार्डवायर ये चीज कर रखी है कि कोई भी नई चीज प्रैक्टिस करो, उसमें पहले तो डरो मत, और ये मत सोचो कि ये इज इट समथिंग आई डोंट एंजॉय डूइंग इट, आई डोंट लाइक डूइंग इट। गिव इट अ ट्राई एंड डू इट फॉर 21 days। कहते हैं जिंदगी में 21 दिन के लिए कुछ करना, कोई चीज जो अगर किसी ने बोली भी है, लेकिन उसमें करने में क्या जाता है, ठीक है, अगर वो अच्छी है। कोई किसी को मर्डर करने को थोड़ी बोल रहे हैं, कोई किसी को। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर फॉर सेल्फ ग्रोथ, और कई बार नहीं पता होता, ऑब्वियसली वो अननोन जोन है हमारे लिए, तभी तो हमने आज तक किया नहीं है, लेकिन करके देखो, बड़ा मजा आता है, एंड थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस सूनर और लेटर।
कई लोगों की जिंदगी में विक्ट्रीज बहुत जल्दी आ जाएंगी, कई लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, जिनमें थोड़े से ब्लॉक्स हैं, बट 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक अपने ब्रेन को देना बहुत जरूरी है। तो वो पावर ऑफ साइलेंस था, इसीलिए आई शेयर्ड, एंड इट्स अ स्मॉल बुक। मुझे पता है आप लोग सब बहुत बिजी लोग हो और आप असाइनमेंट्स भी नहीं करते हो, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है ना, मैजिक बुक के, इसीलिए मैंने छोटी बुक दी थी। आई कुड हैव गिवन यू हैवी ड्यूटी बुक ऑल्सो, ठीक है, लेकिन आई डिड नॉट। और ये टेलीसाइकिक बुक जब हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे डॉक्टर जो डिस्पेंसा की कोई किताब पढ़ने में। अभी हम शायद उस लेवल पे पहुंचे नहीं हैं, अभी हम अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंसा की इससे भी एक नेक्स्ट लेवल की किताब है। इवन दैट बुक, द बेसिक बुक जो उनकी है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, सो इट इज लाइक, इट जस्ट सेज दैट स्टॉप सेइंग दैट दिस इज हु आई एम, यू आर नॉट, you are constantly evolving, changing, getting better. Some people are getting worse, some people are getting better, but don't say that this is who I am. No, who I am is a being which is forever changing. Okay, and slowly you will, that gets unfolded, and you yourself see that जो situation आपको बहुत bog down करती थी, उस situation में it's not, you're not even bothered, like it's not even affecting you that much, because you are so much in love with yourself and your life, and you know your creative powers. You know that I can stand tall that business which is a multi crores. I have that capability in me. पहले ऐसे लगता था कि बहुत ज्यादा, मतलब कैसे होगा, how will I step out of the house and make my own identity. But the moment you get connected to yourself, you realize that suddenly कुछ ऐसे हो जाता है, opportunities आ जाती हैं, and you get to step out of that comfort zone जिसमें आप trapped थे for the last 25 years, and you're doing the things that were unexplored. हमारी जिंदगी के लिए unexplored है ना. There are people who have not traveled, but कहते हैं कि जगह change होनी बहुत जरूरी होती है victory के लिए. So that travel will bring forth that courage, that mindset, a different way to view the things. तो एक ट्रैप से आप बाहर निकल रहे हो, है ना, एक शेल में थे जो cocoon में, the cocoon of your comfort zone, उसमें से you're breaking out and doing the things that you have never done before. वहां वेंचर कर रहे हो, अलग तरीके से सोच रहे हो, एक डिफरेंट करेज आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो रही है, कॉन्फिडेंस जो अंदर से था, जो लग रहा था कि अभी तक दैट मैं तो इतने साल ऐसे ही रही हूँ, लेकिन वो एक अलग कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटी, और सबका सपोर्ट आ जाता है पता नहीं कहाँ से. वो इंसान जो आपको अभी तक नहीं कुछ करने दे रहा था, दैट पर्सन विल टेल यू दैट व्हाई डोंट यू ट्राई दिस. सो दैट मीन्स कि आपके साथ साथ आपका एनवायरमेंट भी बदलता जा रहा है, क्योंकि सब कुछ आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. अगर फ्रीक्वेंसी वैसी है, कई लोग डर के मारे बोल नहीं पाते कि नहीं, रिएक्शन तो यही आएगा अगले का, है ना. समटाइम्स वी थिंक दैट नो, इफ आई टेल दिस टू सो एंड सो पर्सन, आई नो हाउ ही और शी बिहेव्स, उसका जवाब यही होगा. बट ऐसा होता नहीं है. दिस इज एफर्मेशन जो हम अपने लिए नेगेटिवली कर देते हैं कि मैं ये बोलूंगी तो दिस पर्सन विल से दिस. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट. एवरीथिंग इन लाइफ इज चेंजिंग, इवन दैट पर्सन्स माइंडसेट हैज चेंज्ड सो मच. इट्स जस्ट दैट आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी उसको करने की. इसीलिए ग्रैटिट्यूड की फाउंडेशन पे जब बेस करके और उस फाउंडेशन पे पैर रख के जब चलते हैं, तो विक्ट्री डेफिनेटली अनफोल्ड होती है. ठीक है. सो यस, नीति इज रीडिंग दिस चैप्टर फॉर अस, हाउ टेलीसाइकिक रिवील्स द ग्रेट सीक्रेट ऑफ द एजेस. Yeah. Good morning, ma'am, and good morning, everybody. Thank you for the reading part. How Telepsychics Reveals the Great Secret of the Ages. Many people today are afraid of malignant thought projections, black magic, the evil eye, voodoo, etc. There seems to be a general fear that there is some sort of hidden power that others can use to hurt them or to mar their happiness. या आई होप ये हमारे ये जो ब्लैक मैजिक होता है, मतलब किसी को नजर लगाना या किसी पे ऐसे बोलते हैं ना, टोटका करना, ऐसे कुछ टोना टोटका. सो कोई और करता है किसी के लिए, मतलब वो गलत नजरों से गलत एनर्जी उस पर्सन की लाइफ में देता है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है. हाँ जी. The greatest secret within man. You will truly lead a full and happy life when you awaken to the greatest of all truths. It is expressed in Deuteronomy 6:4, ratio here, O Israel, the Lord our God is one Lord, which means here
in brackets is understand. O Israel, brackets, illumined, awakened man, brackets close. The Lord, the lordly power or supreme power, our God, our ruler, the infinite power, is one Lord, one power, not two, not three, not 10, not 1,000, just one. Yeah, so this particular topic, the greatest secret within man, it means that हर एक इंसान जो भी 8.5 बिलियन की पॉपुलेशन जो आज है, हर एक इंसान जो इस धरती पे ह्यूमन फॉर्म में आया है, उसके पास भगवान की या कॉस्मिक पावर फोर्स जो है 100% सब में इक्वल है, और गॉड ने वो पावर दे के ह्यूमन बींग्स को इस धरती पे भेजा है दैट गो प्ले द गेम ऑफ लाइफ एंड लेट्स सी वेदर यू विन वेदर यू लूज. ठीक है, वो पावर हम सब के अंदर है और उसी लेवल की है. If it is 100%, it is 100% in everyone. Some people learn how to use it. Some people don't know about it. Some people don't even know that they have God inside them, because वो trap होते हैं external situation से. So this is what it is written. और डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्योंकि पहले क्रिश्चियन पास्टर थे, चर्च में प्रीस्ट थे, ठीक है, लंदन में, तो इसलिए उनकी किताबों में हम बहुत सारे बाइबल के एनेक्डोट्स और बाइबल के कोट्स हम देखेंगे. तो इसमें यही लिखा हुआ है दैट हमारे अंदर वो 100% कैपेसिटी है, वो भगवान की गॉडली पावर है, जो कॉस्मिक फोर्स है, जो यूनिवर्स में है. सेम पावर हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव इट इनहेरेंटली. सो ऐसा नहीं है दैट किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो वो यही बता रहे हैं कि हम सबके पास वो बराबर है और वो इन्फिनिट है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम दुनिया में उससे. हाँ जी. The superstitious origin of black and white magic. When we were very young and highly impressionable, our parents, who didn't know any better, told us about a punitive God and also about a devil who would tempt us. They also cautioned us that if we were very bad, we might go to hell and suffer forever. Children and childish minds think only in pictures or mental images, and not knowing anything better, they project images of God and a devil. Children envision God up in the heavens on a golden throne surrounded by angels, and the devil down below in the flames of hell, not realizing that, in fact, all of us create our own heaven and our own hell by the ways in which we think, feel, and believe. Primitive man attributed pleasure to the gods and all pain, suffering, and misery to evil spirits or to devils of his own creation. Prehistoric man realized that he was subjected to strange forces over which he seemed to have no control. Earthquakes and floods took place, and not knowing the cause, the jungle priests said that the gods were angry. Then they proceeded to offer up sacrifices to appease the angry wrath of the supposed gods. The sun gave man heat, but in a prolonged drought, the same sun seemed to scorch the earth. Fire warmed man, but it also burned him. The thunder terrified him. Lightning paralyzed him with the fear. The waters flooded his lands at times. His cattle and children were drowned. His understanding of external powers consisted of primitive and fundamental beliefs in many types of gods. From this crude and ignorant reasoning, primitive man proceeded to supplicate the intelligences of the winds, the stars, and the waters, hoping they would hear him and answer his prayer. He proceeded to make offerings and sacrifices to the gods of the wind and the rain. Primitive man divided the gods and genii into beneficial and malignant powers.
Hence, you will find the universality of these two powers in all the creedal beliefs of millions of people. A belief in two powers is a hangover from these age-old superstitious beliefs. ओके सो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं प्रिमिटिवली हिस्टोरिकली बहुत साल पहले आई थिंक इंडिया अभी भी वहीं फंसा हुआ है, ठीक है, तो कि तब ऐसा होता था कि ठीक है अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप स्वर्ग में जाओगे, अगर आपने कुछ बुरी चीज की तो आप नरक में जाओगे। और बच्चे जब हम छोटे होते हैं तब हमको कहा जाता है कि देखो अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो हमारी इमेज, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा वो होते हैं ना रॉ, तो बचपन में वो एक इमेज बना लेते हैं उस चीज की कि स्वर्ग कैसा दिखता है, कि स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, सब खुशियां होती हैं, वहां पे गॉड्स डांस कर रहे होते हैं, या मे बी लाइक अप्सराएं होती हैं, वहां पे बहुत सारे एंजल्स होते हैं, वहां पे खूब अच्छे अच्छे लाइक बचपन में किस तरह सोचते हैं कि केक के हाउसेस बने होते हैं, बचपन में कैसे भी सोचते हैं। सिमिलरली अगर ये भी कहा जाता है कि देखो झूठ बोलोगे या कुछ ऐसा करोगे तो आप नरक में जाओगे, नरक में हमको बताते थे कि एक बहुत हॉट कढ़ाई होती है, उसमें पानी, उसमें आप तेल में गिर जाते हो, आपको मतलब कुछ कुछ बोलते थे। तो इस तरह से ये चीजें हमने बचपन से कही सुनी है दैट अच्छे काम करोगे तो यूल गो टू हेवन, अदरवाइज यूल गो टू हेल। सो एज चिल्ड्रन वी हैड दैट डिस्टिंक्ट इमेज व्हाट इज हेवन एंड व्हाट इज हेल। सो इस तरह से हमारे अंदर वो इमेजरीज जो है ना हमारे दिमाग के अंदर घुस गए, जिसके कारण हमारी जिंदगी जो है, कहते हैं कि अगर मतलब टिल अबाउट 6-7 years ह्यूमन ब्रेन बहुत मोल्डेबल होता है। उस वक्त अगर हमने बिना सोचे समझे कोई चीज ऐसी सुनी भी है तो वो डेफिनेटली सीमेंट हो गई है, क्योंकि उस वक्त पूरा सबकॉन्शियस माइंड इज 100% ओपन, बिकॉज कॉन्शियस माइंड का क्लटर बिल्कुल भी नहीं होता है बचपन में। सो इट इज सेड दैट टिल 6 years जब हमारा माइंड में जो हमको बोला जाता है वो जाके उसमें परमानेंटली अपना घर बना लेता है, और उसको ही निकालने की हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो शायद हमने तब सुना था कि ऐसा होता है। वेरएज ऑफ कोर्स डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसके बाद समझाएंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आप एक सिंगल माइंडसेट को चेंज करके आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हो और अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो। बेसिकली वो एंड में यही हमको समझाने वाले हैं जो उन्होंने हमको चैप्टर 1 में भी बताया था कि आपके पास यूनिवर्सल पावर है, आप उसको यूज करके अपना पूरा पास्ट का भी जो है, अब जो वो जो एनर्जी रिलेटेड टू वट एवर नेगेटिव हैड हैपेंड वो आप चेंज कर सकते हो, करंट एंड फ्यूचर, जस्ट बाय गेनिंग दैट कंट्रोल ऑफ द माइंड, अपने दिमाग को अपने वश में रख के कंट्रोल करके उसको उसी डायरेक्शन में स्टेयर करके जैसा हम चाहते हैं। तो इसमें उन्होंने पूरा ये समझाया हुआ है कि हेवन एंड अर्थ, फिर ऐसे लोग बोलते थे ना कि बहुत जोर से मतलब अर्थक्वेक आई है, फ्लड आया है, टॉर्नेडो आया है, कहीं पे आंधी तूफान, इसका मतलब है कि भगवान नाराज है ना, ऐसे ही बोलते थे। तो भगवान को अपीस करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ करते थे लोग, हवन करते थे या सैक्रिफाइस देते थे। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके होते हैं कि भगवान को कैसे खुश किया जाता है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली नथिंग वर्क्स। व्हाट वर्क्स इज मतलब कोई फायदा नहीं है कि कोई अलग अलग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है लेकिन मन में थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस अच्छे नहीं है। सो टीचिंग्स फॉलो करना जरूरी होता है इन सब रिलीजन्स की, क्योंकि टीचिंग्स में ही किस्मत छुपी हुई होती है। इट इज नॉट अबाउट टेकिंग दैट एक्शन ऑफ गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, एंड उसी टाइम अपने दिमाग उल्टा पुल्टा चल रहा है, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, कर्मास बहुत अच्छे नहीं है, दूसरों का ईविल सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप 50 मंदिर भी चले जाओ लेकिन अगर मन में ये सब चल रहा है, सबसे बड़ा भगवान मन होता है, अंतरात्मा अपनी, अगर वहीं पे गड़बड़ चल रहा है एंड यू आर नॉट विशिंग समवन वेल, और आपको किसी की खुशी से जेलसी हो रही है, या फिर किसी की सफलता नहीं देख पा रहे हैं, या अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं किसी तरीके से, झूठ बोल रहे हैं लगातार, तो 100 टेम्पल जाके भी कुछ नहीं होने वाला, किस्मत में 1% भी शिफ्ट नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड अस। ओके, दिस इवेंचुअली इज डेफिनेटली देयर, जो हमने चैप्टर 1 में तो पहले ही डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पहले उस बात पे हमको यकीन दिलाया, एंड देन ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू अस अबाउट द बैकड्रॉप एंड द हिस्टोरिकल टीचिंग्स दैट शुरू से अभी तक हो रहा है। बट इंडिया मुझे लग रहा है ये सब पढ़ के कि अभी भी हम वहीं पर हैं, अभी भी हम वैसे ही सोचते हैं हेवन एंड अर्थ, तो इस तरह से। बट ठीक है, मुझे तो लगता है हम सब हेवन में ही जी रहे हैं आजकल,
मतलब जिस तरह True. का हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरह की हमको चॉइसेस है, टेक्नोलॉजी जिस लेवल तक आगे पहुंच गई है, जिस तरह से लड़कियों को फ्रीडम है, हम हमारे बच्चे हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कुड वी हैव डन दिस 100 years ago? कुड वी जस्ट हैव गॉन आउट? मेरी फ्लाइट्स लैंड होती है 1 बजे 2 बजे रात को, और जैसे मैं बाहर आती हूँ देयर इज अ कार वेटिंग एंड देन आई एम बैक होम इन अबाउट 25 minutes, जबकि इतना डिस्टेंस है एयरपोर्ट मेरे घर से। ये इससे अच्छी कोई मतलब जन्नत, ये तो हेवन है बिल्कुल, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से फ्रीडम है। men earlier still had freedom but women did not have freedom 100 years ago. उनको फिर भी ऐसे से ढक के रखना पड़ता था, और वो बाहर नहीं जा सकती थी, सोशलाइज करना उनको अलाउड नहीं था, like there were certain restrictions. तो now you see our daughters and we ourselves the way we live, हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये अलाउड है ये नहीं अलाउड है। ठीक है, देर आर सर्टन फैमिलीज जहाँ पे बड़ों के सामने थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है, विच इज ओके। आई थिंक लड़कियों में ये इनहेरेंट विजडम होती है कि उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ऐसे बिहेव करना उनके सामने, I mean, of course, with all due respect to men, whatever females are is because of the men folk in our lives, otherwise we wouldn't have grown so much. I think the freedom and the love that we've got and the support we've got from all the men, that is incredible. ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हस्बैंड्स भी अलाउ नहीं करते थे अपनी वाइफ्स को सर्टन तरीके से बिहेव करना, घर से बाहर जाके काम करना, ड्राइव करना, इस तरह उनका काम बस फीमेल्स का ही होता था। तो मुझे तो लगता है कि हेवन ऑन अर्थ तो अभी है, मतलब इससे गोल्डन एज हो नहीं सकती जिसमें अभी हम रहते हैं। जिस तरह का मतलब कहीं किसी कंट्री में जाना हो, मतलब पहले सोच भी नहीं सकते थे किसी कंट्री में जाना हो, ये वो, मतलब यू जस्ट हैव टू बुक योर फ्लाइट एंड इट्स ओनली गेटिंग ईजियर फॉर अस, मतलब इतनी सारी कंट्रीज अभी वीजा फ्री हुई है लास्ट टू लास्ट मंथ, उसमें जिसमें आपको अब वीजा की भी जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट बुक योर टिकट्स एंड यू कैन गो। आप 4-4 घंटे में दूर दूर की कंट्रीज पहुंच जाते हो। इससे अच्छी और क्या चीज होती है? लेकिन फिर भी हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है, जितनी लाइफ इजी होती जा रही है उतनी परेशानियां बढ़ती जा रही है। ये तो हमारा माइंडसेट ही है ना फिर। वरना इन चीजों को अगर हम अप्रिशिएट करने लग जाएं कि वाओ, मतलब देर इज नो जेंडर बायसनेस एट ऑल, राइट? आई मीन एवरीथिंग वी आर एबल टू डू, कोई वो नहीं है कि ये फीमेल्स के काम है वो है। बच्चे हमारे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कहीं जाना होता है, कैन यू इमेजिन गोइंग एनीवेयर विदाउट अ गूगल मैप नाउ? आई मीन लाइक मुझे यही लगता है कि स्वर्ग तो अब स्वर्ग ही में ही रहते हैं हम लोग, 24 घंटे हम स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। So this is the beautiful era. Just enjoy this moment that we are in. It is, everything is so organized, everything is so easy. कहीं पे भी जाना हो, कहीं ट्रैप हो जाओ तो बस वो गूगल मैप लगा के चले जाओ, वहां पे कुछ पूछना नहीं पड़ता। पहले इतनी मुश्किल होती थी किसी प्लेस से ऐसे प्लेस भी जाने में, अब बस गूगल मैप आपको एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचा देगा जहां पे, और ये भी बता देगा कि देखो आप 21 मिनट्स में वहां पहुंच जाओगे, लेकिन ये वाला रास्ता लेते हो तो 28 मिनट्स लगेंगे, इस वाले रास्ते पे थोड़ा हैवी ट्रैफिक है, ये आप अवॉइड कर सकते हो, शॉर्टर रूट ले लो। ये भी गूगल साथ साथ बताता रहता है। Isn't it like amazing kind of a life that we are living in? खाने का एक्सेस, शॉपिंग करने का एक्सेस, ट्रैवल करने का एक्सेस, पैसे कमाने के अलग अलग जरिए। सिर्फ एक चीज करनी होती है हमको, जहां वर्क करना है अपने आप पे, ठीक है? वो ही मिनिमम वर्क कर लिया ना, अपने आप बाहर की दुनिया सुंदर हो जाती है। सो या लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। Yeah. Good and evil in your life are determined by your thoughts. The forces of nature are not evil. It depends upon how you use them. You can use any power in either of two ways. The same wind will blow a boat on the rocks or carry it safely to the harbor. You can use electricity to fry an egg or to electrocute someone. You can use atomic energy constructively to drive a ship across the ocean or to destroy cities, towns, and people. You can use water to drown a child or quench his thirst, fire to warm or burn him. We give purpose to the forces of nature. Good and evil are in the mind of the individual. They are now nowhere else. Think good and good follows. Think evil and evil follows. यहाँ पे अब डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अगले ही पैराग्राफ में बता दी है पावर और सच्चाई बता दी है।
कि गुड एंड इविल हमारे दिमाग में, हमारे थॉट्स में होता है। वही एक चीज जो होती है सामने, वो हमको इविल दिखती है, लेकिन वो गुड भी नजर आ जाएगी क्योंकि उसमें गुडनेस भी होती है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे पानी जैसे होता है, पानी से अपनी प्यास भी बुझा सकते हो और पानी में ड्राउन भी हो सकते हो। ठीक है, तो क्या आपको जो आपने सोचा है वही आपके साथ होगा। अगर आप पानी को एज अमृत देखते हो कि ये मेरा अमृत है, मेरे अंदर जाके मेरे हर एक बॉडी के सेल को ये रिपेयर कर रहा है, हील कर रहा है, मुझे ताकत दे रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है, ठीक है, मेरी बॉडी को प्यूरिफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है, और सारे टॉक्सिन्स को निकाल के यूरिन से बाहर फेंक देता है ये पानी। ठीक है, अगर आप पानी को उस तरह से देखोगे तो पानी वैसे ही बिहेव करेगा, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स पेनिट्रेटिंग दैट थिंग दैट यू कंज्यूमिंग, या जो भी सामने रखी हुई है। और वही चीज अगर आप देखोगे, देयर सो मेनी पीपल व्हेन दे ईट फूड दे आर लाइक ये क्या लौकी की सब्जी बनाई है, बिल्कुल टेस्टी नहीं है, बेकार खाना बनता है घर में, इतना फीका है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है। इस तरह कर करके अगर हम खाना खाएंगे तो डू यू थिंक कि हमारा कोई भी सेल हैप्पी रहेगा अंदर? बिकॉज उस एनर्जी से जब हम कंज्यूम कर रहे हैं खाने को, ठीक है, तो एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाता है। तो मैंने जब मैंने बताया था ना, जब सुब्रमण्यम जी ने वो मुझे पानी को कहा था कि आप पानी को बोलो दैट आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, यू नो, लाइक यू डोंट डू मी एनी गुड, इस तरह से मैंने किया था। तो उन्होंने फट से, उनके पास वो एनर्जी डिटेक्टर था, उन्होंने 1 सेकंड में एनर्जी बताई तो वो माइनस में आ रही थी, नेगेटिव हो रही थी, बिकॉज वो पूरा क्लोज हो गया था खट से करके। और उसी पानी को उन्होंने कहा कि अब आप इसकी एनर्जी चेंज करो, एंड ही मेड मी स्पीक सर्टेन वर्ड्स लाइक आई रियली लव यू, व्हेन यू गो इनसाइड माय बॉडी आई बिकम सो हेल्दी, you know, and this, that, whatever, that thank you so much, and I'm so grateful that you're going inside my body and quenching my thirst and making up my cell, मेरी बॉडी इतने पानी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोली 30 सेकेंड्स तक। और जब मैंने वो बोला, उस सेम पानी की जो एनर्जी थी जो नेगेटिव में जा रही थी, वो एक्सप्लोसिव हो गई थी, मतलब इट वाज गोइंग आउटसाइड द रूम इन विच वी वर सिटिंग। सो यू सी, एवरीथिंग अबाउट दैट ओनली। तो हम अपनी थॉट से वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर थिंग जो होती है वो अच्छी और बुरी होती है। तो वही पानी अमृत भी हो सकता है, और वही पानी कर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे थॉट्स किस तरह के हैं। तो अपने थॉट्स को रीप्रोग्राम करना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, इसका फिनोमेना जो होता है। मेटाकॉग्निशन मीन्स रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड, और अपने विचार, अपने सोच को ऑल्टर करना इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिविटी, और अच्छे से उसको सोचना। दिस इज व्हाट वी डू। तो मेटाकॉग्निशन का प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा, बट हम जितना जल्दी रियलाइज करें उतना अच्छा होता है। तो मेटाकॉग्निशन एक्चुअली डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरह वही छोटी छोटी चीजें जो हमको नहीं पसंद थी, आप उसमें एनर्जी चेंज कर दो। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइफ विल जस्ट, सो देर आर सर्टेन पीपल जिनको हमने बहुत नेगेटिव एनर्जी दी हुई है हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में है ना, पास में दी हुई होगी में भी, अभी भी बहुत ग्रेट नहीं है उनके साथ एनर्जी। फिर देन देर आर सर्टेन प्लेसेस जिनके पास बहुत नेगेटिव एनर्जी, उस जगह को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, क्योंकि शायद वहां पे ऐसा कुछ हुआ था जो हमको पसंद नहीं था, मतलब जो अभी भी हमको बैड मेमोरी देता है। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर कोई सिचुएशन, कोई एनेक्डोट, कोई हैपनिंग शायद ऐसी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जिसके कारण अभी हमको कुछ इशू चल रहा है या जो भी है। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि हमारी करंट प्रॉब्लम उसके कारण है, हमको नहीं पता होता। ठीक है, तो इस तरह से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके रखना और उसको स्टीयर करना इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इन्होंने यही समझाया है यहाँ पे कि जो विंड होती है, वो विंड मतलब विल ब्लो अ बोट ऑन द रॉक्स एंड कैरी इट सेफली टू द हार्बर। दोनों तरीके से काम करती है विंड, है ना। विंड सेल करा के आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाती है जिसमें आप जाना चाहते थे, या फिर इट विल ब्लो अप द बोट ऑल्सो। तो दोनों तरीके से काम करती है। सेम थिंग इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसे आप अपना एग फ्राई कर सकते हो, या कोई इलेक्ट्रोक्यूट भी हो सकता है, किसी को करंट भी लग सकता है जिसके कारण उसकी जान ही चली जाए, है ना, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो हर चीज अपने थॉट से गवर्नड होती है, इसलिए पावर लाइज विद इन यू। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ।
ठीक है, अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो अपनी वजह से, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और कोई चीज मेरी जिंदगी में बहुत टाइम से नहीं आ रही है, वो भी मेरी वजह से ही है, और मेरे अंदर वो सारा पावर है कि मैं उसको अदरवाइज क्रिएट कर लूँ, वो थिंग को जो अभी मुझे नहीं अच्छी लग रही है। दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग अस। सो इट इज ऑल अप टू अस, अप टू आवर थॉट्स। तो अपने थॉट्स को अपने बस में रखना, अपने वश में रखना बहुत जरूरी होती है। हाँ जी। Keep your eyes on the greatest thought and move ahead in life. Judge Thomas Troward, the author of Edinburgh Lectures and many other books, stated in 1902, once you admit that there is any power outside yourself, however beneficial you may conceive it to be, you have sown the seed which must sooner or later bear the fruit of fear, which is the entire ruin of life, love, and liberty. We must contend earnestly, both within ourselves and outwardly, for the one great foundation, and never now on to all eternity admit for a single instant any thought which is opposed to this, the basic truth of being. Troward has stated a marvelous truth which each person should keep before him. The suggestions of others have no power to create the things they suggest. The power is in your own thought. When your thoughts are God's thoughts, God's power is with your thoughts of good. It is always the movement of your own thought which is a creative power. You have the power to completely reject any negative suggestion and unite mentally with the omnipotence within you. Yeah, this is so beautiful. So Yeah. all of us Indians, I think, need to hammer this in our head. So it says that कभी भी आपको लगता है कि बाहर, हमारी जिंदगी के बाहर की कोई भगवान की मूर्ति या कोई पावर, कोई फोर्स जो हमारी जिंदगी के बाहर है, जो अंदर नहीं है, मतलब जैसे हम सोचे कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टैचू हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि उसमें पावर है या किसी और के सजेशन में पावर है, इसका मतलब है कि हमें अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये एडमिट करने लग जाते हो कि कोई भी पावर है जो आपकी जिंदगी के बाहर है, कोई किसी और की वजह से आप ऐसे हो, किसी और की वजह से आप ऐसे नहीं हो, किसी और की वजह से ये हुआ आपकी जिंदगी में कि उसने ऐसा किया इसलिए मेरी हेल्थ खराब हो गई, उसने ऐसे कुछ, मतलब ऐसे ये चीज मुझे खिला दी जिसके कारण मैं ऐसी हो गई हूँ। इट सेज दैट देयर इज नो सच थिंग। सब कुछ आपने अपनी थॉट से इनवाइट किया है क्योंकि आपने उसमें नेगेटिव एनर्जी दी हुई थी। तो ये हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत फंडामेंटली कोड से समझा रहे हैं। कोड मतलब जो न्यूक्लियस किसी चीज का होता है ना, कि हर चीज, हर थॉट आपकी लाइफ में जो जो चीजें हैं, इवन इफ इट इज समबडी टेलिंग समथिंग और आपके कानों में उसकी बात गई है, ये आप ही ने इनवाइट किया है। ठीक है, अब कैसे किया है हमको पता नहीं होता। एक दिन में हमारे 86,400 थॉट्स या जो भी होते हैं, कौन से थॉट ने उस चीज को मैग्नेटाइज किया हमको पता नहीं है। हम पास में जाना भी नहीं चाहते। ठीक है, हमको बस अपनी पावर पता होनी चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि देखो जी, आपके अंदर इतनी बड़ी पावर है जिसको हम भगवान की शक्ति बोलते हैं, है ना। जो ब्रह्मांड की शक्तियां जो हैं सारी हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे ह्यूमन माइंड में है, ठीक है, ब्रेन में है। सो यूज दैट टू क्रिएट द थिंग्स, बिकॉज हर चीज जिंदगी में आपकी वही हुई है जो आपके दिमाग में कभी ना कभी एक थॉट के रूप में स्टेम हुआ हो। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया है। जज थॉमस ट्रोवर्ड का ये कोट इन्होंने बताया हुआ है, 1902 में इन्होंने लिखा था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी पावर आपके बाहर है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, उस वक्त जो भी लग रहा है, बट बहुत जल्दी आप एक फियर फैक्टर आपके मन के अंदर हमेशा आ जाएगा, बिकॉज आपने अपनी पावर को छोड़ के किसी और की पावर को पावर दे दी है। मतलब आपको लग रहा है कि वो ज्यादा वो है। सो इसकी वजह से आपकी लाइफ, एंटायर रूइन ऑफ लाइफ, लव एंड लिबर्टी, ये सब चला जाएगा। जिंदगी रूइन हो जाएगी, प्यार चला जाएगा, और लिबर्टी मतलब जो फ्रीडम आपको करने की जो है, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, वो भी आपको चली जाएंगी अगर आपने अपनी पावर को किसी और को दे दिया तो।
So that is what it says, that we must contend earnestly both within ourselves and outwardly for the great foundation जो ये वाली है, basic truth of being that person, that power जो हमारी लाइफ के अंदर है, मतलब हमारी सोच, पावर, थॉट का मतलब सोच होता है, तो सोच विचार हम करते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो हमारी जिंदगी में उन सारी चीजों को मैग्नेटाइज कर रही है जो हमने सोचा था हमको जिस तरह की जिंदगी चाहिए। तो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बहुत डिस्टिंक्टली समझा रहे हैं दैट दूसरे अगर आपको कोई बोल रहे हैं या कोई सजेस्ट कर रहा है, उनके पास कोई पावर नहीं है अनलेस यू वांट टू डू इट योरसेल्फ। So he says here, the power is in your own thought. I just feel like underlining and highlighting this sentence. The power is in your own thought. जब आपके थॉट्स गॉड के थॉट्स होते हैं, गॉड के थॉट उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में समझाए थे, इज ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, प्रोग्रेस, अमेजिंग हेल्थ, ट्रेवल्स, फन, जॉय, लाफ्टर, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, लव। ठीक है, ये उन्होंने हमको बताए थे कि ये गॉडली पावर्स होते हैं, ये वो सारी चीजें होती हैं जिसको हम, इन्होंने इसको नाम पावर ऑफ द सबकॉन्शियस बुक में दिया था लाइफ वर्ड्स। ठीक है, ये लाइफ वर्ड, गॉड के थॉट लाइफ वर्ड्स होते हैं, ये लाइफ वर्ड थॉट्स हैं जो हमने अभी बताए। तो अगर आपका दिमाग, हमारी थॉट अगर अलाइन रहेगी इन पर्टिकुलर चीजों के साथ दैट आई जस्ट नेम, तो हमारी इसकी वजह से क्रिएटिव पावर एक्टिवेट हो जाएगी और हम अपना राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज कर पाएंगे क्रिएशन के लिए। अभी तक राइट साइड ऑफ द ब्रेन परेशानियों के लिए यूज होता था। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह वर्क करता है, और आप अपनी थॉट से सब कुछ, अपने पूरा एनवायरनमेंट, पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फ्यूचर, सब कुछ कंट्रोल में रख सकते हो जिस तरह से आपको खुद चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो हम क्रिएटिव पावर एक्टिवेट करने के लिए हमको ऐसे करना ही होगा कि अपनी पावर को, अपने थॉट्स को गॉडली थॉट्स के साथ अलाइन करना होगा। You have the power to completely reject any negative suggestion. That means अगर दिमाग में आया कि उस पर्सन ने मुझे बहुत इल ट्रीट किया था, मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी है, सपोज, then thank you for all my perfect relationships. Thank you universe that I want to have amazing relationships with everyone and I will have them. I know my power. Okay, so आपको स्टीयर करना पड़ेगा राइट साइड में, इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन द लेफ्ट साइड जहां पे उस पर्सन ने ट्रीट किया था, वो थॉट आपको आ रहा है, इंस्टेड आपने उसको स्टीयर करके दैट थैंक यू रिवर्स दैट आई हैव अमेजिंग रिलेशनशिप्स विद एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल दीज रिलेशनशिप। ठीक है, 2 लोगों ने आपको नास्टी हुए आपके साथ में, लेकिन 50 पीपल हैव बीन नाइस टू यू। ठीक है, सो वी विल ग्रेविटेट मोर टुवर्ड्स दोस 50 पीपल वाला थॉट्स, एंड दैट वे हम अपने आप उस नेगेटिव सिचुएशन को रिजेक्ट कर लेंगे और हम we will realize that omnipotence within us. Omnipotence means the infinite capabilities and potential that lies within us. Okay, that is what it is. So yeah, thank you, Neeti. This is how much we'll be able to read today, but we did read quite a lot. Thank you so ma'am. much. Yeah. So we'll start this tomorrow. Why the so-called voodoo curse is merely a negative suggestion. So negative suggestions बहुत आएंगे बाहर से, लोग नजर लगाएंगे, कुछ करेंगे, negatively सोचेंगे, but then like how we can kind of rise above all of these, अपने mindset को strong करके कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे that life will take another step towards making a life more beautiful than it already is. राइट, बिकॉज हम ये किताबें बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो अब हमको बहुत अच्छे से इनका वो पता लगेगा, वैलिडेट होंगी दोबारा से। या थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Anything anyone wants to add, suggest, share, or else we close for today? शांति है बहुत ज्यादा ग्रुप में। Thank you so much, ma'am. थैंक यू कुछ बोलने के लिए। मुझे लग रहा था मेरी आवाज किसी को आ रही है, नहीं आ Love रही you, है। ma'am. Love you. Hi, ma'am. Thank you so Ma'am, much। I have Topic a was so much question. into our life now, ma'am. Yes. That's why we Thank are you, our ma'am. overall naam, actually. हाँ, Silent, topic silent. जानी होती है ना, ये इतना आसान नहीं होता है Oh कि my दिमाग God, को में oh my navigate- God में बोला था ना, ma'am. Oh my God, में there was a dialogue that we are God-fearing people, not God-loving people. Actually, it is we are all dwelling in the fears.
fear कर करके चिंता कर करके we are welcoming those things into our life. Instead of that, we have to love God or the God within ourselves. So जब हम उसको प्यार करेंगे ना, तभी हमारी लाइफ में प्यार आएगा, हमारी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट कर सकेंगे हम लोग. So this is, I love this thing from that movie. Oh my God में वो बोल रहे थे, मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे थे कि अच्छा मैंने देखी things नहीं are वो not मूवी। अच्छी मूवी है मैम. इट्स मस्ट बी अच्छा वॉच्ड एक्चुअली. हाँ, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि दे आर नॉट लाइक, हाउ विल यू बी एबल टू सेव पीपल, बिकॉज दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल. डर के मारे करते हैं ना, मंदिर में जाके 4 बार घंटी बजाना जरूरी है इसलिए करते हैं, मस्जिद में जाके वहां पर चादर चढ़ानी जरूरी है इसलिए करते हैं, डर के मारे कि अगर वो नहीं किया तो हमारे लाइफ में ये बुरा हो जाएगा. तो वी आर नॉट बिलीविंग इन द पावर्स दैट इज लाइज विद इन अस. वी हैव टू डू दिस नाउ. This is the thing. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, so this is actually very true. Very, God very fearing and Agree. God fearing होते हैं, हमें यही लगता है कि किसी मंदिर में जाके हमारी मन्नत पूरी हो जाती है. बस वही है कि वो मन्नत भी वो एक्चुअली वो हमारे अंदर का गॉड एक्टिवेट होता है, उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं बाय द वे. अगर हमको कोई भी ऐसे लगता है, जस्ट एडिंग टू व्हाट प्रिया मेंशन, इज लाइक हमको अगर लगता है कि वहां जाने से मेरा ये हो जाता है, सो उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं. क्योंकि माइंडसेट में ये है कि जब मैं उस मंदिर जाती हूँ और मैं प्रे करती हूँ तो मेरी विश पूरी हो जाती है. सो विश पूरी नहीं होती है, पहले ये यूनिवर्स आपको डायमंड की वैल्यू रियलाइज कराएगा, फिर आपको डायमंड देगा. ऐसे नहीं मिलती है. और वो जो वैल्यू रियलाइज करने की जरूरत है ना, उसकी जरूरत होती है उस वक्त. तो इसीलिए कभी कभी इम्पेडिमेंट्स आते हैं वैल्यू रियलाइज कराने में उस डायमंड की. और जैसे ही आपको रियलाइज हो गया, तब आपके पास डायमंड क्या, डायमंड की खान आपके अंदर आ जाएगी. यू विल बिकम द माइन, यू विल ओन द माइन ऑफ डायमंड्स. यू नो दैट इज हाउ द मैग्नानिमिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज. सो लेकिन कभी कभी उस प्रोसेस से चलना पड़ता है. अगर बिना वैल्यू रियलाइज किए डायमंड की डायमंड दे दिया जाए तो दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है. We become very arrogant, and then instead of serving the society, we start being nasty and rude to the people. Okay, so this is what happens inside of us. So yeah, I mean like this is the journey. So वो जो process होता है ना डायमंड की वैल्यू रियलाइज कराने वाला, उसको भी enjoy करो. इसीलिए वो विश फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि पॉलिशिंग की जरूरत है अभी हमको. नहीं तो हम एरोगेंट हो जाएंगे, या हमारे लिए शायद आगे जाके वो अच्छा नहीं होगा, या हम अपनी रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे, या हम अपनी हेल्थ की कदर. सोचो अगर कोई उल्टा पुल्टा खा पी के कुछ कर करके, यू नो लाइक वो रोज एफर्मेशन लिख रहा है इंसान, दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रांग बॉडी. ठीक है, बट दैट पर्सन इज स्मोकिंग लाइक क्रेजी, डज नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक, कोई मूवमेंट नहीं है उसका पूरे दिन भर में, अपने बोन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है, रोज ट्रैप्ड इन सर्टन, हाउ कैन दैट पर्सन गेट गुड हेल्थ? नो, सो यूनिवर्स विल मेक दैट पर्सन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ फर्स्ट, एंड देन द गुड हेल्थ विल कम. तो वो जो प्रोसेस होता है रियलाइजेशन का, उसमें कई बार लोग गिर जाते हैं. उसमें उनको लगता है कि थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू माय वे. ओके, बट वो प्रोसेस होता है टू मेक अस रियलाइज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं. इसीलिए रोंडा बर्न ने हर चैप्टर में लिखा है कि किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड मत लो. अगर आपके पास बैंक में अभी 50,000 या 20,000 रुपए भी रखे, उसमें इतनी पावर दे दो ग्रेटिट्यूड की कि वो 20,000 कितनी जल्दी 20 लाख होंगे पता भी नहीं लगेगा. है ना? तो इस तरीके से वैल्यू रियलाइज करके परमानेंट एंड लास्टिंग हैप्पीनेस, जिसको वो बोलती हैं कि वो परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सक्सेस, परमानेंट अमेजिंग हेल्थ, वो हमारी जिंदगी में तभी आएगी जब हमारी अच्छे से पॉलिशिंग हो जाएगी. और वो हमको थोड़ा कभी कभी दुख देता है, बट हमको पता नहीं होता कि वो एक्चुअली हमारी सफाइयां हो रही है हमारी जिंदगी से. इस तरह से. सो दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क. सो इट इज, इसीलिए कहते हैं ना, एम्ब्रेस एनीथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग. Embrace that phase, embrace those moments, embrace that thing, which is happening like that. So yeah, that is what it is. So we have a few hands raised. So we have Samita Nitin. नमस्ते मैम. नमस्ते. आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हूँ. मेरी बेटी की स्कूल होती है ना सुबह, तो मैं तैयारी करती रहती हूँ, इसलिए तैयारी करते करते सुनती हूँ आपका सेशन. अच्छा. मैं अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन हुई हूँ. अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? पुणे में रहती हूँ मैम. अच्छा, ओके.
और वो एक वीडियो यूट्यूब में आपका देखा था मैंने, उसमें आपने हस्बैंड के लिए एक स्लीप लिखने के लिए बोला था। हाँ। सॉरी। तो मेरे हस्बैंड हर दिन नहीं रहते हैं, काम के लिए उन्हें कुछ दिन बाहर गांव जाना पड़ता है, तो मैं मोबाइल पे लिखती हूँ उनके लिए, हर दिन व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। इतने अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं ना मुझे, वो बहुत खुश रहने लगे हैं तब से। बहुत बहुत क्या थैंक यू लिख के आपको। भेजते हो उनको? उनको भेज देते हो आप व्हाट्सएप से मोबाइल पे? ये बोल हाँ रहे हो? व्हाट्सएप, सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ पहले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और बाद में एक चीज जो उन्होंने मेरे लिए की है पास्ट में, वो याद करके उसके लिए थैंक यू भेज देती हूँ। बस अभी तो इतना ही लिख रही हूँ। कोई भी एक अच्छा। अच्छी चीज जो उन्होंने मेरे लिए की है, हाँ। वो लिख के, जैसे कि थैंक यू, दैट्स थैंक यू। ब्यूटीफुल। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ, नई तरीके की प्रैक्टिस है, विच इज सो ब्यूटीफुल। सॉरी थैंक मैं यू। दिस इज सो सुना। स्वीट ना मैम, बहुत प्यारी वेरी बहुत बहुत वेरी, अच्छी। क्योंकि हम लोग लिखते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते कभी भी, मतलब इन मैम ये पर्सन मतलब बहुत ये कम होता ना, लोग ये हैं। जो भोलापन है ना, वो इससे कुछ नया निकल के आता है। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है। हाँ वो यहाँ बहुत नहीं अच्छी। रहते तो मैं सोच रही थी कैसे लिखूं, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। सुबह सुबह उठते ही उनके लिए एक चीज कोई भी, जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर देखने ले गए थे, तो उस दिन आपने मुझे वो पिक्चर दिखाई, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना लिखती हूँ और भेज देती हूँ। अच्छा, तो उनको तो बहुत पता है अच्छा। आप इस जर्नी में हो, आप सुबह सेशंस करते हो? हाँ पता है, जब घर पे होते हैं तो उनके सामने मैं ज्वाइन हो जाती हूँ ना, पता है उनको अच्छा, सब। वे दिस इज सो ब्यूटीफुल। बट समिता जी, आप एक तो आप उनको भेजते हो, आप करते रहो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। और दूसरी चीज, आप रोज उनके लिए 5 पॉइंट्स लिखो भी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। ठीक है, हाँ लिख रहे 5 हो चीजें मैम, आप, वो है ना, आपने लिखे? आपने ग्रुप में डाला है ना, हाँ, आपने ग्रुप में डाला लर्निंग था के किसी लिए ने, तो वो कर रहे 5 हो ना, सेंटेंस वो थे। आप लगातार करते रहो। हाँ लिख रही हूँ मैम, वो भी लिख रही हूँ, हाँ, लिख रही हूँ देख के। great, very अ, good, congratulations, and may you have a beautiful relationship and a beautiful life और एक बात to you बतानी and थी your मुझे आपको, आप बहुत अच्छे टीचर हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं होता आपका सेशन सुनने के बाद, मुझे तो अभी तक नहीं कोई क्वेश्चन आया आपकी अभी। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। पता नहीं, लेकिन मैं विच इज खुद को सो बहुत लकी ब्यूटीफुल। मान रही हूँ। मैं अभी इस जर्नी में आके 1 डेढ़ महीना ही हो गया है, फिर भी इतनी जल्दी मैं आपसे जुड़ गई। हाँ, किसने चुनाया आपको? यूट्यूब से सुन के? यूट्यूब से जुड़ गई मैं, यूट्यूब में मेरे सामने ये जर्नी में मैं पहले 2 महीने से हूँ, तो मैं यूनिवर्स से पूछती थी कि मुझे सही सही गाइडेंस दे दो, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है। अभी तक तो ऐसे ही चलता रहा जीवन, लेकिन अभी सही गाइडेंस चाहिए कि मुझे किस ओर जाना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य हो सकता है मेरे जीवन का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लगता है इसीलिए आपके पास भेज दिया यूनिवर्स ने मुझे। वो लगता है नहीं, वो इसीलिए भेजा है। कोई धीरे भी, देयर धीरे आर नो धीरे कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, एवरीथिंग हैज अ हायर रीजन। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। देखते अभी तो जाइए, अभी तो ग्रेजुएशन। 1.5 ही महीना हुआ है, 1 साल के बाद यू विल नॉट बी द सेम समिता दैट यू आर टुडे। आप थैंक यू पूरे मैम। खानदान का नाम रोशन कर रही होंगी अपने तरीके से, अपने यूनिक तरीके से। थैंक यू मैम। अभी मुझे आपसे एक चाहिए, क्या बोलूंगी, अफर्मेशन। ये मेरी बेटी है, इसकी एग्जाम है स्कॉलरशिप की 18 क्या? फरवरी को, तो मैं क्या लिखूं इसके लिए, और ये क्या लिखे। एग्जाम के लिए मैंने बताया था ना आपको, बच्चों के लिए आपको 5 पॉइंट्स रोज लिखने होते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए 5 पॉइंट, दूसरे अगर एक ही बच्चा है अभी आपका, हाँ, तो आप एक इनके ही लिए 5 पॉइंट्स लिखो। दैट जो इनका क्या नाम है इनका? वेदांती। Vedanti, that Vedanti is thriving and flourishing in her studies. Vedanti is a very, very happy, healthy, joyful girl. Vedanti is making all the family and teachers very proud by doing the work. And then Vedanti is always, whatever she loves is coming, like into her life, and she's shining in that area. And Vedanti always scores so well and is a very responsible as a person and has friends with very good influence coming to her life. तो इस तरह से आप लिखते रहो, और रोज रिपीट भी कर सकते हो, कभी कभी चेंज भी कर सकते हो इनको, बट आप 5 पॉइंट्स रोज लिखो। इवेंचुअली वो इनकी जिंदगी में जाके रियलिटी बन जाएंगे। ठीक है? तो थैंक जिनके यू। 2 बच्चे हैं, जिनके 3 बच्चे हैं, उनको रोज, मतलब जैसे अगर आप हस्बैंड हो तो आप अपने वाइफ के लिए
अपनी मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए, और अपने दो बच्चे अगर हैं तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग 5-5 पॉइंट्स लिखने चाहिए, विच डजंट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और वो दिन में आप किसी भी टाइम लिख सकते हो, उसमें वो नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही लिखना है, ठीक है। सो इस तरह करके यू विल सी दैट जो जो आप लिखोगे दैट बिकम्स अ रियलिटी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, All गॉड right. ब्लेस यू। Thank you so much. This is so sweet of you. You're so beautiful as a person. I feel like मैम hugging you बोलो right बोलो। now. थैंक यू। नहीं, कल मैम मुझे इतना रियलाइज हुआ ना, वो एक दी बता रही थी कि उनको अगली डकलिंग कहा जाता था बचपन में। मेरे साथ भी ऐसा है, मेरी बहन है, वो अरे बहुत वो तो खूबसूरत है adorable. और मैं इतनी सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन मेरे मन में थोड़ा गिल्ट था उसके लिए, मेरे मन में था, पहले से ही था कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी 2-3 साल से मैं ऐसा सब भूल गई हूँ, दिखने के बारे में कोई विचार ही नहीं आता है मेरे मन में। मुझे क्या करना चाहिए और मेरी जिंदगी खुश कैसे हो, इसी बारे में मैं विचार करती हूँ। ओके, अब यू आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे ग्रुप में सब है, वो देख के आपको एकदम से बोल देंगे। जय So, स्वाहा beauty सूर्यदम is always नमः within. प्रजापतिये That's स्वाहा so beautiful. प्रजापतियेदम नमः। Inside out beautiful. वो देखो निधि टंडन का Thank मंत्र you. शुरू हो गया आपकी आवाज उनके कान में पड़ते ही। तो Thank देखो you so much. गॉड ब्लेस कर रहे हैं आपको, अपने आप से शावरिंग्स ऊपर से आ रही हैं। So congratulations and best wishes to you for a beautiful present and future. Thank you. Thank you, and bye Vedanti. It is so good to see you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, then we have Rachna in abundance. Rachna is in abundance or Rachna is abundance? Always in abundance. Yeah. Anji. मैम आई हैव अ क्वेश्चन, आई डोंट नो वेदर अभी उन्होंने बोला उनको कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, शैल आई आस्क और नॉट? Please do. Yeah, ma'am, I know this question I asked in the last session as well, matlab last time when we were doing magic work, lekin still I keep on getting that question again and again. So what is the exact difference between the Count My Blessing, Magic Rock and Remember the Magic? Isn't it like the timing when we have to do that is definitely different, but apart from that, what is that basic difference between all the three? Okay, so count my blessing is whatever you have inside and outside your life, jiski wajah se your existence is there. You know, like for small little things, like to the doors, to the windows of your house. Imagine agar darwaza ek din ke liye toot jata hai aapki balcony ka. Somebody will not be able to sleep only na, because aapko lagega ki this is unsafe and all of that. So count my blessings is there are so many things in our life जो हमें पता भी नहीं है, जिनकी वजह से हमारी life exist कर रही है, and it is so easy and comfortable, like the air that we breathe, the doors and windows that you have in the house, to the geyser that you have in the house, to the RO system that you have, to your friends and family who are there, you know, to the office where you go to work, to the public transport and the, you know, private transport that you use to travel, to the road which is there, you know, to the sun that comes in every morning. तो इस तरह count my blessings is everything that's there in your life जिनकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया है. So ये सब blessing है, सब कुछ gift की तरह God ने हमको दिया हुआ है, ठीक है? That's count my blessings. Magic rock is because रात में सोने के पहले subconscious mind is very pliable, you know, आप किसी भी तरह उसको मोल्ड कर सकते हो, and because destiny is subconscious mind, जो subconscious mind में feelings हैं वो destiny होती है. So इसीलिए just before going to sleep हम पूरे दिन भर में से extract करके चीजें, we are scratching beneath the surface in extracting all the good things that we kind of, you know, that has happened, and that's magic rock practice. At the time, remember the magic is that हमको जो हम प्रोग्राम्ड हैं पास्ट में से सिर्फ नेगेटिव चीजें पिक करने के लिए, अब हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं और अपना हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बना रहे हैं to pick up the golden nuggets from the past instead of picking up the negative things. ये बेसिकली रीप्रोग्रामिंग की एक टैक्टिक है जो यूज कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन उसी तरह वायर्ड है कि इट पिक्स अप ऑल द नेगेटिव थिंग्स वेरी इजीली फ्रॉम द पास्ट, जिससे हम हुक्ड रहते हैं हमेशा. हम इंस्टेड अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं कि हम पास से अब सिर्फ अच्छी चीजें उठाएंगे.
तो इसीलिए, and that is easiest to do when it is yesterday. So once we get used to cultivating this habit of picking up only the good things, not even thinking about the negative thing that has happened, हमारा brain permanently reprogram हो जाता है, and which is also called as neuroplasticity. ठीक है, अब उस तरह से वो plasticized हो गया है that it is only gravitating towards the things which are good. So basically ये एक practice है to reprogram the mind. काउंट माई ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो सुबह और रात को करते हैं, बेसिकली वो उस टाइम करते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, सो दैट वी आर वी आर सीमेंटिंग दोज थिंग्स विच आर गुड. बट रिमेंबर द मैजिक इज रिमेंबरिंग इट, लाइक पिछले कल से परसों से अच्छी अच्छी चीजें हम अपनी जिंदगी में आज याद कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी एक हैबिट, अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं that we've been living with for so many years of our life. Like just picking up right now also, if we really think about, like we very easily remember all the negative things, negative people, those situations that were not that great, and people keep talking about it also. So वो thing change कर रहे हैं. So magic rock practice and remember the magic are similar, but purpose is very different for both of them. The purpose of remember the magic is to pick up the nuggets of gold from your past life, whereas magic rock is basically to rewire the subconscious mind and to put all the good things into the subconscious mind, because उसके बाद आप सो जाओगे, वो seeds डाल के आप सोगे, वो पूरी रात में brew होते हैं. So that is what it is. The purpose is different for them. The practice is more or less the same, but magic rock is much more detailed, whereas remember the magic is more to do with the highlights of yesterday and picking up all the good things. So ये जब आदत पड़ जाती है ना, तो अपने आप जो नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी में हुई थी पास्ट में, हम उनको भूलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी वो आदत छूट जाती है to sit and dwell in the negativities. So that is what, this is the basic difference in all these practices. In a way, gratitude है, सुबह gratitude है, remember the magic gratitude है. So उस level पे fundamentally तीनों चीजें are teaching us to be grateful to the core. That is what all the practices are all about. There's a commonality between all the practices, while the purpose for all of them are slightly different, and the way to do them also would be different that way. Thank you Okay. so much, ma'am. Yeah. Very Thank clear. you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye-bye for today. See you all tomorrow morning. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank Thank you. We Thank love you, you ma'am. so much, ma'am. Would you want to say Ma'am, have a something, great ma'am? day. Pushpa? Thank you. Oh, Thank Khushbu, you, you want to ma'am. share Thank Thank you so something? much, ma'am. Okay, I didn't so see your much, ma'am. hand Thank you. raised. Khushbu, yeah, please speak Yes, quickly. ma'am. Then we just log out. It's already 7:20. Ma'am, I want to do the sharing of the YouTube. Acha, एक second. So people on the YouTube, bye-bye for today. See you all tomorrow with another beautiful chapter.